लेट्स टॉक अबाउट दी पॉवर्टी। ठीक है। सो सबसे पहला चीज है कि पॉवर्टी डजंट मीन जस्ट लैक ऑफ मनी। सो इट इज ए मल्टी डायमेंशन डिप्रिवेशन ऑफ ए कैपेबिलिटी टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ। कहीं भी होगा यही डेफिनेशन लिखेंगे पॉवर्टी को। ठीक है। इन इकोनॉमिकल टर्म्स देर आर टू टाइप ऑफ पॉवर्टी, इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देयर इज ए रिलेटिव पॉवर्टी। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देयर यू आर unable to afford any kind of basic goods. ठीक है। Relative poverty, that you are unequal compared to the standard of living, that is the relative poverty. So there is a poverty line, that there is a threshold income or a consumption level beyond up and which you will be determined as a poor. Okay. India, so we are talking about किसे ले हम as a poverty parameter. We can take income as a parameter as well. We can take consumption as a parameter as well. Okay. So consumption, when we take the consumption as the parameter, it talks about that what you spend. Okay. Income, it what you earn. Okay. So we take it the consumption expenditure, because income in informal sector is very much difficult to measure and hard to track. Okay. So uh, the household consumption जो आपका survey है. Okay. So, how much percent of the population below the poverty line? You need to आपको ये बताना होगा, ठीक है? And so poverty gap index, it is taking from the root mean square. So you need to understand that is a distributionally sensitive. Okay. So what is the phase of evolution? So the very first phase is the 1971 to 1979 ka time. So during that times we are passing through the wars, famines. So when you see the Dandelkar and Rath and the Alag committee, so they ignored the human aspect of poverty line. So they are focusing much more on the survival. So there is the calorie phase. In 1993, we came with the Lakrawala. Okay, so the Lakrawala committee, there's a basket expansion he did, like we incorporate shelter, transport, clothing in that basket. Okay, state specific poverty lines also. Then in 2005 we shifted to the multidimensional shift. Okay, so we come with the Tendulkar committee, Rangarajan norms. Okay, food and non-food. Okay, so we are now focusing on macro tracking of the national progress. Okay, and from the 2011 onwards we take the exclusion and the inclusion criteria to micro target. Okay, so basic है कि logic behind focus from survival to expenditure shift is focus on quality of life. Okay, तो हम लोग अ, क्यों, आप देखोगे ना उसमें सबके पीछे लॉजिक है, कि एक लॉजिक आप समझो कि जब हम लोग कैलोरी फेज से मूव आउट किए टू द टारगेटिंग फेज, एक चीज हम लोग को समझना है कि वी आर नाउ मच मोर फोकसिंग ऑन, why we are much more focusing on different types of expenditure, why we are expanding baskets, because we want that how out of pocket expenditure आपको वापस पॉवर्टी में घींच सकता है, दिस इज द थिंग। ठीक है। अब पहला जो कैलोरी इरा था, दैट इज ऑफ द दांडेलकर रथ कमिटी, अलग कमिटी, दैट इज ऑन योर सर्वाइवल लेवल। देन वी गो टू द एक्सपेंडिचर इरा, where we talk about the Lakdawala committee, the Tendulkar and Rangarajan committee. There is a quality of life. Now we talk about the deprivation era, that we target the people with most deprived. ठीक है, आपको ये समझना होगा। तो early on from before the Dandelkar and Rath, whenever we want to talk about the poverty in the 1860s, Dada Bhai Nauroji, in his book, he mentioned about the in the book Poverty and Un-British Rule of India. So we talk about the jail cost of living, that how much is the cost of a subsistence diet of a prisoner is the average poverty line in a country. This is the first thing. In 1938, so the National Planning Committee, so there's a poverty line on the minimum living standards. Okay. In 1971, when the Dandelkar Rath Committee come with the NSSO data, they talk that 2250
calorie is needed. The Alag committee talk about 2400 for the rural population, 2100 calorie for kilocalorie for day for the urban population. Similarly, when we go for the Lakrawala committee, so Lakrawala is talking about the CPI state specific poverty line. So he's taking measures of the CPI agricultural laborer, CPI industrial worker. So Lakrawala committee से ही start हो गया था. Okay. But calorie norms लकड़ावाला तक भी था, but it expands the basket like shelter, fuel, light ये सबको डाला था, ठीक है. Tendulkar is talking about out of pocket expenditures on the health and education because state failed to provide so. Okay. So uniform urban based basket that is applied to the rural India, that is the norm of the Tendulkar committee, ठीक है. So Tendulkar committee also follow the mixed recall period. So mixed recall period is like there is a 365-day recall, and for some items you have the 30 days recall. Okay. So now what are the changes? So the base year is changed to 2011 and 12. So rural में you have the 27 per day and recall and 33 per day, ठीक है. इसके बाद मतलब पोवर्टी लाइन है आपका तेंदुलकर कमेटी में कि 27 रुपया पर डे रूरल का है और 33 रुपीज़ पर डे इज दी तेंदुलकर कमेटी का है पोवर्टी लाइन, ठीक है. 2011 में रंग राजन नॉर्म्स आया तो न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ द आईसीएमआर नॉर्म्स कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ध्यान दिया गया, ठीक है. तो रंगराजन नॉर्म्स आपका नॉर्मेटिव और बिहेवियरल चीज को भी ध्यान दिया कि फिक्स्ड कंपोनेंट तो कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ नॉन फूड एक्सपेंस भी होना चाहिए, ठीक है. तो एक्सक्लूजन एरर को समझिए कि जो तेंदुलकर कमिटी है वो बताया कि देर इज ए 21.9% पीपल आर पुअर अराउंड 26.9 करोड़ एट दैट टाइम. So Rangarajan committee, when it added the behavioral factors, the nutritional factors, it told that 29.5% are the poor. So there's around 7.6% of the gap between the Tendulkar and Rangarajan, that ultimately accountable for the 10 crore people that have been missed due to some of the norms and some of the parameters that we did not take. So that is the scale, that is the weight on your shoulders that you need to do a better thing here. Okay. Then we talk about the socio-economic caste census. Okay. So the macro objective is that how many are the poor, and micro objective here is who are the poor. Okay. So पहले हम लोग क्या करते थे, एक देयर इज ए बीपीएल सेंसस होता था तेंदुलकर कमेटी के समय में, पर उसमें बीपीएल सेंसस में देयर इज ए इशू ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. ओके. सो देयरफॉर वी मूव टुवर्ड्स द ACCC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. Here we have the three parameters. There is an auto exclusion. There are the 14 criteria on getting which you automatically getting disqualified from the poverty list. Okay. Now the second is the auto inclusion. So they are the people we are who are the poorest of the poor. So this is the second thing. Now the third thing is the deprivation based ranking. So we have the different deprivation criteria. On the basis of that, we target those people particularly on the basis of various schemes. Okay. Like if you see the PM Awas Yojana, so we have a criteria that whoever not have the whoever the kacha house, we have the Jan Arogya Yojana. So we need to give health insurance to the bottom 10 crore family. This is Jan Arogya Yojana. We have the Ujjwala Yojana. We provide clean cooking fuels. You have the Sobhagya scheme. So Sobhagya scheme is for the electricity connection. Ujjwala is for the clean cooking. Okay, इसको आप समझिए. तो पहला सेंसस हुआ था 1931 में ही, पहला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया था, ठीक है. तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो बना है दैट इज द वर्ल्ड बैंक का मैट्रिक्स. तो ये क्या है? तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज अ मीडियन ऑफ नेशनल पॉवर्टी लाइन. सब आप सारा कंट्री का पॉवर्टी लाइन लगाइए, जो उसका मीडियन वैल्यू होगा दैट इज द वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, एंड इट इज adjusted to the PPP level. Okay. So same buying poor regardless of the country. Okay. So India में है ये चीज 62 per person per day. Okay. Is around $3 in India का, ठीक. तो इंडिया का अराउंड
5.75% people are below the poverty line. Okay, so इसमें है कि it's not talk about quality of life, it's talk about only survival. So it is aligned with the SDG 1.1, so removing the extreme poverty. Okay, so this इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन आया ही है आपका एसडीजी 1.1 को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप $3 पर पर्सन पर डे है आपका, तो यू कैन से इट इज़ ए पुअर कंट्री। मिडिल में दो है, लोअर मिडिल एंड अपर मिडिल। लोअर मिडिल है लाइक 3.65 और अपर मिडिल हो गया 6.85। अगर 6.85 से ज़्यादा है तो यू आर एन अपर मिडिल, 3.65 से ज़्यादा है तो यू आर द लोअर मिडिल कंट्री, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, 3.65 6.85 ये आपको याद रखना है, ठीक है। Now we go towards the multidimensional poverty index. So in multidimensional poverty index we have 10 indicators. So we just take the quality of life measured through the health, education and the standard of living. Health may we have the three parameters, that what is the two parameter, what is the nutrition level, what is the child mortality level. This is the two things. In the education we have the two things there also, that how much year of schooling and how much school attendance you did. Okay, and the third one is the standard of living. So there are the six indicators there. So a person is deprived if you are lacking in one third of the indicator, ठीक है। सो एमपीआई स्कोर क्या है, द हेड काउंट रेशियो क्या है इनटू द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। सो यू आर कैलकुलेटिंग एन एमपीआई स्कोर, ठीक है। सो देयर इन एसडीजी 1.2 कि हम लोग का 1.2 क्या है कि वी नीड टू हाफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय 2030, ठीक है। दिस इज द थिंग। So so the MPI is important for better targeting of inclusion and exclusion error that happen through the BPL census. Okay, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिटवीन 2013 से 14 से लेकर 2022-23 में 24.8 करोड़ पीपल का अपलिफ्टमेंट हुआ है फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, आप ये बोल सकते हैं, ठीक। और केरला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। अब ग्लोबल एमपीआई जो है वो डबल बर्डन को लेके चल रहा है, एक तो पॉवर्टी लेके चल ही रहा है, जैसे क्लाइमेट हैजार्ड भी लेके चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा रिपोर्ट है कि 309 मिलियन पुअर जो है द ग्लोबली फेस ट्रिपल और क्वाड्रपल बर्डन ऑफ हाई हीट, ड्रॉट, फ्लड, एयर पोल्यूशन, ये चीज है, ठीक है। सो देन देयर इज अ चाइल्ड वल्नरेबिलिटी। हाफ ऑफ द वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल पुअर आर चिल्ड्रन, तो चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कीम्स लाना होगा आपको। पॉवर्टी टुडे इज ए जनरेशनल क्राइसिस, तो जो आज का पॉवर्टी है जनरेशनल क्राइसिस, तो चाइल्डहुड इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। तो हम पॉवर्टी स्कीम लाएंगे, तो हम पॉवर्टी को समझ रहे हैं ना कि इन पॉवर्टी वी हैव स्टडीड दैट चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल, ठीक है। हमारे पास डेटा पॉइंट है, हमारे पास क्लाइमेट हैजार्ड का डेटा पॉइंट्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। सो इंडिया का जो एमपीआई है, वी आर नॉट टेकिंग द वर्ल्ड बैंक का एमपीआई इंडिकेटर, so that consists of the 10 indicators. We have extra two indicators as well, that we are talking about maternal health, as well as we have added bank accountability, bank accounts. So in order to track the success of our Jan Dhan Yojana in tracking the Posan Abhiyan, okay. So we rely for this data on the NFHS survey, National Family Health Survey data, okay. This is the thing. So इंडिया का अगर आप डेटा लें तो our life expectancy is 72, infant mortality rate is around 24.5%, gross enrollment ratio in higher education is 32.7%, agriculture workforce is 45%, GDP per capita is of Japan is 12 times more, ठीक है। तो we are comparing with the Japan over here, okay। Now we move to the human development. Now let's talk about human development as well. So तीन चीज है, जैसे ही बात आए इक्विटी का, तो इक्विटी का we are talking about the starting line theory. If the girl in a remote village has some quality schools as a boy in a healthy city, so we are talking about the equity. So when we talk about sustainability,
So we talk about the opportunity for the future generation as well. When we talk about productivity, we need to increase the human labor productivity. We talk about healthy educated worker. When we talk about empowerment, we talk about good governance, people oriented policies, so freedom and capability to influence the decisions. So अब गवर्नमेंट इन सबको टारगेट कैसे करेगी? सो ह्यूमन डेवलपमेंट में 4 पॉइंट लिखना है, इक्विटी के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में और एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है? So the very first approach is the income approach. So income approach is the oldest approach. So it is an indicator of freedom. So more money, you have more choice. So one thing the countries will do, that we will focus on our GDP. So how much the more per capita income we have, more the developed we are. So we ignore that how money is spent. Okay. So if you say if there is a rich country with a poor healthcare, we can say we are following just an income approach. The second is the welfare approach. Welfare approach, that you are beneficiary, not active participant. मतलब when the state is spending ज़्यादा खर्च करेगा सोशल सेक्टर पे, ठीक है? तो ऐसा में वेलफेयर अप्रोच में क्या देखिएगा कि जो गवर्नमेंट है, दे आर एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इम्यूनिटी. ओके, so we need to maximize the welfare through the state led handout. This is the second thing. Now the third thing is the basic need approach. Now the basic need approach is the ILO's approach in 1976. Okay, so basic need approach, that they are asking that what is absolute minimum required to survive. Okay, तो 6 बेसिक नीड आया, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, 3 चीज है. फोर्थ वन इज द वाटर सप्लाई, फिफ्थ वन इज द सैनिटेशन, सिक्स्थ वन इज द हाउसिंग. ठीक है, सो हम लोग को इंश्योर करना है कि एवरी वन विल गेट दिस 6 थिंग्स. इफ यस, सो यू ब्रोक द पॉवर्टी ट्रैप. दिस इज द थिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द कैपेबिलिटी अप्रोच. तो कैपेबिलिटी अप्रोच इज द वाइडली एक्सेप्टेड थिंग. सो दिस इज द बेस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, सो अमर्त्य सेन क्या बोल रहे हैं कैपेबिलिटी अप्रोच में कि डेवलपमेंट कब होता है? व्हेन वी बिल्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी. ठीक है, इट इज नॉट व्हाट यू हैव बट व्हाट यू कैन डू और बी. ये चीज आपको देखना होगा. ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच बाय अमर्त्य सेन. सो वी हैव इनकम अप्रोच, वी हैव वेलफेयर अप्रोच, वी हैव बेसिक नीड अप्रोच, वी हैव कैपेबिलिटी अप्रोच. तो डेवलपमेंट मीन्स क्या है? यू नीड टू गिव कैपेबिलिटी ऑफ मोबिलिटी, हेल्थ दो, स्किल दो, एनवायरनमेंट दो, ऐसा दो. ठीक है, सो अब हम लोग यूएनडीपी का इंडेक्सेस पढ़ेंगे. तो पहला इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि 3 कैटेगरी में 10 पैरामीटर है. उसके हिसाब से हम लोग ह्यूमन नहीं, वो तो मल्टी डायमेंशनल एमपीआई था. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग है. तो हम लोग वेलबिंग में कितना प्रोग्रेस है वो नापने के लिए वी हैव ए एचडीआई. ठीक है, तो इसमें 3 चीज नापा जा रहा है. पहला है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हेल्थ का, कि व्हाट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सेकंड इज द नॉलेज, उसमें आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और आपका एक्सपीरियंस ईयर ऑफ स्कूलिंग नापा जाता है. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उसके लिए आपका जीएनआई पर कैपिटा, पीपीपी डॉलर में. ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इज द एचडीआई पैरामीटर. तो उसका हम लोग ये ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं फॉर द एचडीआई. ठीक है, so Iceland is the first in the HDI. India is around 130 out of 193 countries. So we are 0.685 score. So we are medium human development category में हम लोग आ रहे हैं 0.685 score के साथ. ठीक है, now the second is the MPI. So MPI is the 10 indicator. So MPI में we know 10 indicators. If we are deprived of one third of the score, so we are deprived. We are multidimensionally poor. Okay. So what is our goal? So we need to identify who is poor and how they are poor. ठीक है, so that we can do the targeted cure for that. ये चीज हम समझना है एमपीआई में. ठीक है, इसके बाद आपको इसमें एक पॉइंट लिखना है कि कंट्री के पास अगर हाई एचडीआई है, इफ वेल्थ इज कंसेंट्रेशन इन वन सिटी एंड रूरल एरिया विल लेक इन एमपीआई. तो केवल एचडीआई इज नॉट ए गुड स्कोर. ठीक है, एंड ओके, दिस इज द थिंग.
सो इसलिए हम लोग आए हैं कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई की बात की हम लोग, कि कैसे जो ये गेन है या जो ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपल. सो वी आर फैक्टरिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. ठीक है. सो द एचडीआई इज द पोटेंशियल that the level of human development an average person can enjoy. So that is the HDI. ठीक है. Inequality adjusted HDI is that if we need to account the inequality. ठीक है. तो when we IHDI को माइनस करेंगे HDI से, it will do for the overall loss due to inequality. Okay. So it is actually the wasted human progress because it is not shared. ये आपको बताना होगा. ठीक है ना. तो क्या क्या में लॉस हो सकता है? हेल्थ में, एजुकेशन में और इनकम में. तो इनकम इनइक्वालिटी हम लोग नापते हैं गिनी कोएफिशिएंट से. हेल्थ में हम लोग चेक करते हैं डिस्पैरिटी इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो ऐसे करके आपको देखना होगा. तो अगर आप इंडिया का एचडीआई स्कोर देखिएगा, इट इज अराउंड 0.685. ठीक है. और इसका IHDI जो है अराउंड 0.475. सो फॉर द अकॉर्डिंग टू HDI we are the middle human development country, but we have when we take IHDI we are the low. So we have the decrement around 30.7%. Means we are losing our one third of the development due to inequality. इससे क्या पता चलता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट आर मच मोर रिच सेंट्रिक. ठीक है. सो कोई भी पॉलिसी के लिए IHDI इज ए गुड पैरामीटर, क्योंकि उससे हम लोग एक्यूरेसी नाप पाएंगे. ठीक है. कि अगर हम लोग हाई एचडीआई स्कोर कर रहे हैं और लो IHDI है, इसका मतलब क्या? वी हैव गुड हॉस्पिटल्स बट वी हैव ओनली फॉर रिच. ये है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू कैप्चरिंग द इनविजिबल. ओके. तो ये इससे क्या होता है? अ, जैसे अगर मान लो एवरेज निकाल लें, तो एवरेज हाइट द मिsery. एक कोट है ना, एवरेज हाइट द मिsery, बट IHDI टेल दैट वन पर्सन इज स्टार्विंग देयर. ठीक है. ये हो गया. चौथा है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इजी है. जो फीमेल एचडीआई डिवाइडेड बाय मेल एचडीआई इज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. तो जो स्टैंडर्ड एचडीआई का 3 पैरामीटर है ना, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और जीएनआई पर कैपिटा, उसको जेंडर्स के पैरामीटर पे नापा जाएगा. ठीक है. तो इसके हिसाब से जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से 5 ग्रुप में बांटा जाता है. यूएनडीपी बांटता है. ठीक है. उसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बेसिकली नाप रहा है कि हाउ मच ह्यूमन डेवलपमेंट इज लॉस्ट ड्यू टू इनइक्वालिटी बिटवीन द जेंडर. तो केवल एक स्पेसिफिक इनइक्वालिटी को लेते हुए हम लोग नाप रहे हैं, दैट इज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. सो उसका 3 डायमेंशन है. एक है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, आपका एम्पावरमेंट हो गया, आपका लेबर मार्केट हो गया. ठीक है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी, एडोलसेंट बर्थ रेट लेते हैं. ठीक है. एम्पावरमेंट में हम लोग लेते हैं कि पार्लियामेंट में सीट कितना है, सेकेंडरी एजुकेशन कितना है फीमेल का, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या. तो टोटल 5 पैरामीटर्स है इन दी 3 सेक्टर्स. ठीक है. तो अगर 1 है, 0 से 1 का स्कोर होता है. 0 इज द परफेक्ट इक्वालिटी, 1 इज द इनइक्वालिटी. ठीक है. तो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. तो इसमें बोला जा रहा है कि वी आर इम्प्रूविंग बट इट विल टेक 123 मोर ईयर्स टू रीच द ग्लोबल पैरिटी. सो विमेन एम्पावरमेंट में ये पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट का. ठीक है. तो देयर इज ए PHDI. PHDI क्या है? सो पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो ये 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है. ये नहीं नहीं, पोल्यूशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है शायद. तो इसमें 2 चीज़ लिया जाता है. CO2 इमिशन पर कैपिटा लिया जाता है और दूसरा है आपका मटेरियल फुटप्रिंट. मटेरियल फुटप्रिंट क्या होता है कि एक आदमी का जो कंजम्पशन के लिए कितना रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट इज दी पोल्यूशन इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. तो HDI में जैसे इंडिया का स्कोर 130 है. ठीक है. इंडिया का स्कोर कितना है? 130 है. तो PHDI में इंडिया 116 है इंडिया का स्कोर. ठीक है. ये भी याद रखिए. तो PDI क्या है? तो HDI इंटू 1 माइनस इंडेक्स ऑफ प्लानिटरी प्रेशर. प्लानिटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकाल रहा है. ठीक है. तो आप देखिएगा कि जो आपका बड़े बड़े कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव द हायर और द स्कोर इन द HDI. बट व्हाई? दैट इज ड्यू टू द मच मोर प्लानिटरी प्रेशर दे आर क्रिएटिंग. सो दे आर गेटिंग लोअर स्कोर इन द प्लानिटरी HDI. ठीक है.
तो अगर आप इंडिया का पर कैपिटा CO2 इमिशन देखिएगा, दैट इज अराउंड 2 टन, ठीक है, और उनका मटेरियल फुटप्रिंट इज एवरेज अराउंड 4.6 टन, सो वे सिग्निफिकेंटली लोअर है 2 टन CO2 पर कैपिटा, ठीक है। तो वी नाउ थिंक अबाउट द पॉवर्टी रिडक्शन। So around 1947 से 1960, it is the era of scarcity and planning. Okay, so uh, लिटरेसी इज अराउंड 18% था उस समय, पॉवर्टी 70 to 80% था उस समय, हम लोग स्टार्ट किए थे अराउंड 1960s। so we required of the structural reforms like land में, PSUs में, so we come up with the green revolution and the गरीबी हटाओ during 1970s 1980s। we are tackling with the famines, we are tackling with the high yielding seeds, okay। so we have seen the direct state intervention, we have seen the bank nationalization at that time, okay। so after 1990s तो अपना देश खड़ा हुआ है। so in 1990s to 2013 we are seeing the LPG reforms, we are seeing our GDP growing, so we are seeing direct schemes like um, NFSA schemes, Manrega scheme, uh, that uplift the poverty, like 270 million people got uplifted, okay। so उसके बाद 2014 के बाद से we have the targeted welfare era, okay। so we uh, talk about uh, the target of government is like saturation, that we are not now uplift somebody, we are having the deal of 100% should have the basic need, okay। so we talk about the digital inclusion, Jan Dhan Yojana, yes, JAM scheme ke through we should have the basic amenity। so when you see the schemes like PM Awas, when we see like Jal Jeevan scheme, Swachh Bharat, Ujjwala, okay। so World Bank का extreme poverty क्या है, if somebody is around $3.2.15 $15 per day, that is the extreme poverty। so India में अभी भी 2.3% people they are in the extreme poverty, so 250 million people escape the extreme poverty in the last decade, ये आपको बताना होगा, ठीक है। इसके बाद अभी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्यों है, नाउ पहला रीजन है इनइक्वालिटी का, that we have different starting lines, so there is an unequal opportunity that we get, पहला। दूसरा, technological change, that the today's world will reward those we have whoever have the high skill knowledge worker, ठीक है। थर्ड थिंग इज दी पॉलिसी, इसके वजह से, ठीक है। तो आपको समझना होगा रिसोर्स कर्ज के बारे में, दैट व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पहला आप समझिए डच डिजीज के बारे में। डच डिजीज में क्या हुआ था कि वी हैव ओनली ऑयल एंड करेंसी राइज, जब अदर एक्सपोर्ट उसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। सो यू आर रिलाइंग कंप्लीटली ऑन द इम्पोर्ट्स, okay। now the second thing is the rent seeking and corruption, so you use natural resources instead of building the business, and the taxation gap, जब ऐसा होता है ना कि you just not tax the citizens, so you just give the freebies, you just uh, take care of them by the welfare resources, but ये taxation gap भी रहता है कि because much more people are giving taxes, the more and more responsibility accountability you need to bear एज ए गवर्नमेंट, ये चीज है। एक होता है आपका प्रेस्बिस सिंगल हाइपोथेसिस। तो प्रेस्बिस सिंगल हाइपोथेसिस क्या है कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स टेंड टू डिक्लाइन ओवर टाइम कंपेयर टू प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, ये चीज है, ठीक है। तो जो रिसोर्स डिपेंडेंट नेशन है वो दे आर स्ट्रक्चर्ड टू बी पुअर। बहुत नुआंस पॉइंट है, इसको समझिए कि अगर आपकी इकोनॉमी वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप हमेशा समझिएगा कि ओवर द टाइम जो रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि पीपल आर मच मोर वर्किंग ऑन द, you can say, refining of those processes, the manufactured goods out of that natural resource becomes much more, you can say, customized. So everything, every country that is a resource dependent, they are structured to be poor. This is the first thing. Now the second thing is the Kuznets curve. अब Kuznets curve क्या है कि मान लो सो सो कुजनेट्स कर्व क्या बोल रहा है कि इन द वेरी अर्ली पीरियड व्हेन एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, सो सो
गवर्नमेंट क्या किया कि देयर विल बी one part of the one block of the society that work heavily on the you can say the infra side, in the technological side, in the industry side. So at the very time that inequality goes to very high and the whole country become the rich, but due some part of that, and after some time what happened, that inequality decreases and the wealth is distributed. Okay, because the one section become too rich, that they will cater and they will decrease the average uh, income of the whole country. Okay, now there is a Piketty theory. Piketty theory क्या बोल रहा है कि the rate of return on capital is greater than the growth of economy and wages. Okay, इसकी वजह से क्या हुआ, इनहेरिटेड वेल्थ का कॉन्सेप्ट आने लगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अब इनइक्वालिटी मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, अब इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए आपके पास लॉरेंस कर्व है, तो मैक्स लॉरेंस 1905 में लाया था। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड का बात हो रहा है। मान लीजिए ऐसे तरीके से कि कितना नेशनल इनकम कितने हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये एक आइडियल कर्व होना चाहिए, मतलब 10 आदमी के पास 10% है, 20-50% आदमी के पास 50% नेशनल इनकम है, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कर्व ऐसे हो जाता है, लॉरेंस कर्व। ठीक है, ऐसे 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 हो जाता है कि कुछ परसेंट के पास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं जीनी कर्व में कि मान लो जो ये कर्व है, इसका ये जो ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है, तो ए बाई ए प्लस बी होगा। तो ये 1, मान लो ये वाला 1, ये वाला 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये आपका जीनी कोफिशिएंट होगा। तो if we have the Gini coefficient of 0, we have the perfect equality, and if we have the score of 1, we have perfect inequality. ठीक है, तो 0 में वी आर डिक्रीजिंग, गिनी कोफिशिएंट में हम लोग घटाए हैं, रूरल में 0.28 से 0.24 पे आए हैं, अर्बन में 0.36 से 0.28 में आए हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम है। ठीक है, अ, तो वेल्थ इनइक्वालिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इनकम इनइक्वालिटी से। ठीक है, और लॉरेंस कर्व में जितना कर्व होगा उतना इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या नेशनल इनकम और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड है, पुअरेस्ट टू रिचेस्ट। ठीक है, ये गिनी कोफिशिएंट का ग्राफ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझना चाह रहे थे ग्रोथ मॉडल को, कि ग्रोथ मॉडल क्या है। तो दो टाइप का ग्रोथ मॉडल हो सकता है। फर्स्ट वन इज द ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन में है राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट्स, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कोट कीजिएगा, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट्स। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो मान लो हम लोग जो टॉप में हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स कट देंगे, बहुत ज़्यादा सब्सिडी देंगे, उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और वो डाउन द लाइन बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। सो लाइक ट्रिकल इज लाइक ड्रिप। ठीक है, बट उससे क्या होगा ना कि ऊपर वाले सेक्टर में वेल्थ कंसंट्रेट हो जाएगा, इनइक्वालिटी वाइड हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। नाउ द सेकंड इज द इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो कि शेयर्ड है, सो एवरीवन विल पार्टिसिपेट। ठीक है, तो पहला क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करना होगा, सोशल प्रोटेक्शन में काम करना होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करना होगा। इससे क्या होगा कि जो ऊपर के सेक्टर जब जॉब देंगे, तो नीचे के सेक्टर्स के पास कैपेबिलिटी हो उस जॉब्स को लेने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। सो ये प्रो पुअर पीपल ग्रोथ है। ठीक है, तो नेशनल इकोनॉमी में 5% का योगदान है। इनकम ऑफ बॉटम 20% इज द 8% ऑफ द ठीक है। सो 11 5 ईयर प्लान का जब हम लोग बात करें, तो हम लोग उसमें बात किए थे मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का। अब 11 5 ईयर प्लान का बात कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात कीजिएगा, तो ट्रिकल डाउन अप्रोच में क्या बोलेगा, सो वी ट्रिकल डाउन अप्रोच बोलेगा यू शुड इंकरेज द मार्केट ग्रोथ। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सोशल डिविडेंड जो है रिच से पुअर इंस्टेंटली जा रहा है। ठीक है, सो एक पॉवर्टी ट्रैप होता है। पॉवर्टी ट्रैप क्या है कि एक पर्सन जो पुअर है वो पुअर रह जाएगा। ठीक है, तो विशियस साइकिल है दैट मेक पॉवर्टी परसिस्ट। सो पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली हो सकता है, कोई नेशन हो सकता है,
स्टक हो जाएगा बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज नीडेड टू escape इट। ठीक है, तो एस कर्व क्या है? तो एस कर्व है तुम्हारा, देर इज ए योर फैमिली इनकम एंड देर इज योर प्रेजेंट इनकम। ठीक है, तो फैमिली इनकम और प्रेजेंट इनकम क्या, इफ योर प्रेजेंट इनकम इज ग्रेटर देन योर फैमिली इनकम, नहीं, इफ योर योर फ्यूचर इनकम से ज्यादा आपका प्रेजेंट इनकम है, देन यू आर इन द ट्रैप। ठीक है, सो इसको आपको तोड़ना होगा, पॉवर्टी ट्रैप को। ठीक है, तो विशियस लिंक है पॉवर्टी ट्रैप का। तो फर्स्ट इज द न्यूट्रिशन लिंक, सेकेंड इज द एडुकेशन लिंक, थर्ड इज द फाइनेंशियल लिंक। ठीक है, तो एडुकेशन लिंक क्या है? इट इज द इंटर जनरेशनल लिंक एंड द फाइनेंशियल लिंक इज द इनिशियल सीड कैपिटल। ठीक है, कि भैया आपको अगर पॉवर्टी ट्रैप में फंस गए तो यू गॉट लाइक न्यूट्रिशन लेवल आपका घट जाएगा। द सेकेंड इज द एडुकेशन एंड स्किल लिंक, कि इंटर जनरेशनल ये इशू आ जाएगा। देन देयर इज ए फाइनेंशियल लिंक, that you don't have the initial seed capital to do any kind of work. Okay, so we need a public investment इसको ब्रेक करने के लिए। We need a microfinance and credit in order to break it. We need DBT, we need infrastructure push. So these are the various kinds of traps. Okay, सो पोवर्टी का विशियस साइकिल में आप उसको न्यूट्रिशन से लिंक कीजिए, उसको एजुकेशन स्किल से लिंक कीजिए, उसको फाइनेंस से लिंक कीजिए। ठीक है, देन वी हैव ए मनरेगा स्कीम, देन वी हैव ए विकसित भारत जी राम जी ऐसे स्कीम है। ठीक है, तो इट इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी नेट है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? हाँ, तो सेफ्टी नेट था कि तीन चीजें था, कि यू हैव द गारंटीड 100 days ऑफ वर्क फ्लोर इन इनकम सेफ्टी फ्रॉम फॉलिंग बैक टू पॉवर्टी। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद आपको समझिए कि वेज बार्गेनिंग पावर था, और इसमें वीमेन एम्पावरमेंट का बात हुआ था, क्योंकि 1/3 वीमेन के लिए रिजर्व था। अब क्या क्या चेंज हो गया? बेसिकली चेंज हुआ है कि जो 100 days था आपका गारंटेड वर्क का, इट हैज इंक्रीज टू 125 days। पहले वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, नाउ इट्स बिकम्स स्टेट स्पॉन्सर्ड, लाइक सेक्टर सेंटर स्पॉन्सर्ड, लाइक 60-40 वाला है। ठीक है, पहले कोई फॉर्मल पॉज नहीं था, इट गेव्स 60 days एग्रीकल्चरल पॉज। देन वी हैव ए बजट कैप्ड, पहले बजट कैप्ड नहीं था, अब बजट कैप्ड हो गया है। ठीक है, तो इससे राइट टू वर्क का जो गारंटी दे रहा था मनरेगा, वो वीक हुआ है। ठीक है, देन नाउ इट इज द विकसित ग्राम पंचायत प्लान आया है। ठीक है, तो दे आर एम टू क्रिएट ए विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक। मीन्स दी मनरेगा का स्कीम अब जनरली कुछ भी नहीं करवाना है। सो वी वांट टू क्रिएट ए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद दी वीवी रामजी scheme, like we want like water security, climate resilience, market connectivity. So we need to align this with the gati shakti. Okay, तो विथ एनएमएमएस है, नेशनल मनरेगा मॉनिटरिंग वाला जो है एनएमएमएस पोर्टल है, जो कि आधार बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन कर रहा है, घोस्ट वर्कर्स को ये करने के लिए ड्रोन से मॉनिटर कर रहा है, ई केवाईसी से इंटीग्रेट कर रहा है। सो देयर इज अ वेरी थिंग्स देयर, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ला दिया है। ठीक है, अब मनरेगा में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए है? ठीक है, तो हम लोग ये किए हैं कि जो फिजिकल एसेट हम लोग बना रहे थे, उससे हम लोग प्रोडक्टिव एसेट बना रहे हैं। ठीक है, जो पहले जो सर्वाइवल स्कीम का बात था, अब वो इनकम जनरेटिंग स्कीम की तरह है। ठीक है, इसके बाद वेज इंडेक्सेशन किए हैं, वी वी नीड टू लिंक विथ सीपीआई रूरल। ठीक है, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। ओके, इसके बाद द थर्ड थिंग इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, चौथा है आपका कि रिड्यूसिंग टेक्निकल एक्सक्लूजन, ह्यूमन इन द लूप फॉलबैक सिस्टम। ठीक है, तो ये अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो डिमेरिट में कुछ कुछ आप बोल सकते हैं कि जो राइट टू वर्क था मनरेगा का, अब उसमें हम लोग बजट कैप कर दिए हैं, तो वो एक बजटेड प्रोग्राम बन गया है, उसका कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हो रहा है, क्लाइमेट एडॉप्शन वेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी भी जो वेज इंडेक्सेशन है, जो उसको बोला जा रहा था कि मनरेगा में वेज को आप सीपीआई रूरल से अटैच कर दीजिए, वो अभी भी इनकम्प्लीट है। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग का तो फिजिकल से आपका प्रोडक्टिव एसेट वाला जो बनने का बात था, वो तो हो गया है आपका पीएम गति शक्ति से। ठीक है, जो सर्वाइवल स्कीम है, तो
वो एक इनकम जनरेटिंग स्कीम बनाएगा। मनरेगा को बोलना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि आप ये बना दीजिए, कुछ उसमें कीजिए कि बाकी आगे से मछली तो तालाब में मछली पालन करें, ऐसा करके। तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या गोल है कि वी वांट जीरो पॉवर्टी बाय 2047। ठीक है, तो इसमें चार चीज है। तो चार वर्ग हैं जो विकसित भारत बाय 2047 में आ रहे हैं। पहला इज द पुअर, द सेकेंड इज द फार्मर, थर्ड इज द यूथ, फोर्थ इज द फीमेल। So when you see the farmers or the poor youth, जो भी बोलो, so there is one VVG Ramji scheme. So when we talk about targeted wealth creation, so Lakpati Didi scheme, Namo Didi scheme, so the poor females they are targeted. So also we want 100% saturation in 5 critical scheme. So housing में PM Awas, water में Jal Jeevan Mission, energy में we have the PM Surya Ghar Yojana, so health में we have the Ayushman Bharat, cooking में we have the Ujjwala Yojana. So इसमें हम लोग सेचुरेशन चाहते हैं। डिजिटल डिलीवरी में यू कैन सी दी जैम, डीबीटी, पीएम किसान, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, ये सारा स्कीम है। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स आर देयर, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो पहला चीज है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो हम लोग पता, ये लोग पढ़ ही लिए हैं कि पॉवर्टी सिर्फ इनकम के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये साइमल्टेनियस डिप्रीवेशन है आपका हेल्थ में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, अगर बहुत जन अर्न कर भी रहा है पॉवर्टी लाइन से ऊपर, दे माइट बी एमपीआई पुअर, दे लेक क्लीन और वाटर स्कूलिंग। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया इज सक्सेसफुल इन लिफ्टिंग मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, but if we measured it through the multi-dimensional poverty index, recognizing that income growth alone does not guarantee the access to the basic human dignities, so ये चीज आपको बोलना होगा। So second is the vicious cycle of poverty. So break करना होगा vicious cycle of poverty requires big push intervention in the human capital. तो कि इंश्योर करना होगा कि दैट द लो प्रोडक्टिविटी टुडे डज नॉट बिकम द परमानेंट डेस्टिनी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बिकॉज हम लोग पढ़े ना ये पॉवर्टी ट्रैप में, क्योंकि वो इंटर जनरेशनल है। ठीक है, तो कैपेबिलिटी डिप्रीवेशन, तो कैपेबिलिटी अप्रोच का बात किए हैं हम लोग अमर सेन का, कि जो पॉवर्टी है वो कैपेबिलिटी डिप्रीवेशन है। ठीक है, ये प्रिवेंट कर रहा है कि इंडिविजुअल फ्रॉम लीडिंग ए लाइफ दे हैव रीजन टू वैल्यू, नेसेसिटिंग ए शिफ्ट फ्रॉम डोल आउट टू एम्पावरमेंट। ठीक है, ये चीज आपको बोलना होगा। द चर्निंग पुअर का कॉन्सेप्ट है। तो सेफ्टी, सोशल सेफ्टी नेट्स डिजाइन करना होगा फॉर द चर्निंग पुअर, जो हु फेसेस द ट्रांजिएंट पॉवर्टी ड्यू टू सीजनल शॉक्स रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबल इंश्योरेंस मैकेनिज्म रेदर देन स्टैटिक सब्सिडीज। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। सो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी में हमको वी नीड रिक्वायर जेंडर बजटिंग दैट प्रायोरिटाइज द विमेन्स लेड लैंड ओनरशिप और उनका इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अनपेड केयर इकोनॉमी, सब बोलना होगा ना जी। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करना होगा। मिडिल इनकम कंट्री से हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, सो वी नीड टू एरेडिकेट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड वी नीड टू मिटिगेट द रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, ठीक है, जीनी कोफिशिएंट है ये है, तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अकम्पेंड बाय वाइडनिंग जीनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो ट्रिकल डाउन फेलिंग हो, ये फेल हो रहा है, सो वी नीड प्री डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज लाइक क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, ये सब। हेड काउंट रेशियो के बारे में बात करना होगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट इज द हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो it often masks the poverty gap index, which measures the intensity and depth of the deprivation faced by the ultra poor। ठीक है, सिर्फ हेड काउंट रेशियो को नहीं लेंगे हम लोग, पॉवर्टी गैप इंडेक्स को लेंगे। ठीक है, so poverty in India is deeply structural. Social exclusion ensures that certain marginalized communities remain generationally poor regardless of overall macroeconomic growth। ठीक है, तो आपको सोशल प्रोसेस बताना होगा जहाँ पे दलित, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज दे आर ब्लॉकिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस लाइक द बैंकिंग, क्वालिटी स्कूल्स। So we have the universal basic income or targeted subsidies. They are the trade-off between the fiscal sustainability and the administrative cost of identifying the right beneficiary। ये बहुत ही मस्त पॉइंट है कि आपको, अगर हम यूनिवर्सल बोल दें, इसका मतलब है कि वी आर वर्किंग मीन्स बहुत मच फोकस कर रहे हैं एक्सक्लूजन एरर्स पे, कि हाँ भाई बहुत जन एक्सक्लूड रह जा रहा है तो ठीक से नहीं हो रहा है। तो
तो जो टारगेटेड ट्रांसफर है वो केवल पुअर्स को टारगेट करेगा, बट उसमें इंक्लूजन नहीं रहा जा रहा। तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है और जो टारगेटेड सब्सिडी है, तो हमको समझना होगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए बेनिफिशियरी। तो राइट बेनिफिशियरी को टारगेट करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ओके, डन डन है।